Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. If you still have not subscribed this channel तो पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? Now, without wasting any time, let us move on to what we will be doing today. So we will be doing today a derivation. What kind of derivation? The derivation is that we have to find an expression for the electric field intensity at a point on the axis of a uniformly charged ring. So our goal is to derive an expression for the electric field intensity at a point जो कि एक्सिस पे पड़ा है किसके एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के. Now this is a very important derivation which can come in your exam. Okay, so I have a ring. So consider a uniformly charged ring. Suppose I have a uniformly charged ring and this charged ring is positively charged. So I am showing the positive charges on this ring and इस ring के axis पर. What is the axis? Axis is the line passing through the center of the ring. So what do you have to consider? That I have a ring which is kept like this. There is a ring like this. Okay, there is a ring like this. And ये जो ring है यहाँ पर, इस ring के center से एक line pass हो रही है, ठीक है, through the axis of the ring. This is the axis of the ring. और मुझे इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर पी पॉइंट. मुझे उस पी पॉइंट के ऊपर रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करना है. ओके, so what do I have to do? I have to find the electric field intensity at the point on the axis of a uniformly charged ring. Okay, so this is what I have to do. Now what we will write? We will write, consider a ring. और ये जो रिंग है इसका रेडियस क्या है? कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस a and a point p on the axis of the ring as shown in the figure. Okay, now charge q is uniformly spread over the entire ring and we need to find the electric field intensity at point P. Okay, so जब भी आप कोई डेरिवेशन को अटेम्प्ट करनी है, यू ऑलवेज हैव टू गिव अ स्मॉल ब्रीफ. आपको ना एक छोटा सा ब्रीफ देना होता है कि आप सिस्टम क्या कंसिडर कर रहे हो जब भी आप एग्जाम में एक डेरिवेशन को लिख रहे हो. ओके, तो आप कभी भी ऐसे नहीं शुरू करते कि हाँ मैम जो लैम्डा है उसकी ये वैल्यू है. यू ऑलवेज राइट समथिंग, राइट? आप कुछ थ्योरी देते हो डेरिवेशन की कि एक कंसिडर करो एक रिंग है जिसकी रेडियस ए है. Then consider a point P which is at the axis of the ring. You have to write this in words. Okay, आप सीधा सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो. यू हैव टू प्रोवाइड सम थ्योरी कि आप डेरिवेशन में एक्चुअली क्या सिस्टम कंसिडर कर रहे हो. देन व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दैट सिस्टम. ओके, so now what did we say? We say that the radius of the ring is a and I have to find the electric field intensity at the point P. नाउ अब हमने क्या सीखा था? हमने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि आप जो है अपनी कॉन्टिन्यूस बॉडीज, जो कॉन्टिन्यूसली चार्ज बॉडीज हैं, उन बॉडीज को आप स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हो. ठीक है, यू ब्रेक योर बॉडी इनटू स्मॉल 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 एलिमेंट्स और आप उस हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हो पॉइंट पी पर क्या है.
एंड देन यू इंटीग्रेटेड, ओके, और फिर आप क्या कर देते हो, आप इंटीग्रेट कर देते हो, ओके. So I will also consider one such element. So let me consider this is my small element. Okay, let me draw it with another color. So let me consider this is my small element of the ring which I am considering. Okay, and I am saying that ये जो element है छोटा सा, इस element के ऊपर charge है dq और इस element की length है dl. Okay, so how will I write this? I will write consider a small element of the ring with length dl and carrying charge dq. Okay, now what is this dq? हमने dq को लिखना सीखा था in terms of lambda, right? अब क्योंकि this is a thin ring, this is a thin ring, और ये जो thin ring है ये क्या है, ये एक piece of wire को जोड़कर बनी है. अगर मैं एक wire के दोनों ends को join कर दूं तो I get a ring, है ना, मुझे ring मिल जाती है. So that means I know that charge per unit length is what? Charge per unit length is lambda. Charge per unit length is lambda. Okay, which was the linear charge density. Lambda है ना charge per unit length, and what will be the lambda? What will be the value of lambda? Lambda की value क्या होगी? It will be total charge on the ring divided by length of the ring. Ring पे total length क्या है? So charge तो Q है, and पूरे रिंग की लेंथ क्या होगी, इट विल बी दी सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, है ना, इट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग. एंड इफ रिंग का रेडियस इज ए, आई कैन राइट दिस एज q by 2 by a. This is the value of lambda. Okay, now if this is charge per unit length, then charge dq on the small element. Small element के ऊपर कितना चार्ज होगा dq? dq will be lambda times the length of the element, है ना, यही होगा. And what is the length of the element? Length of the element is dl. Length of the element is dl. So I got that dq की वैल्यू क्या है, lambda dl, और lambda का एक्सप्रेशन मेरे पास ऊपर क्या है, q upon 2 pi a. So I can write this as q upon 2 pi a dl, right? I can write this like this. Now, what do we do next? अब हम next क्या करेंगे? Now, we will find the electric field due to this small element. इस छोटे element की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग फाइंड करेंगे. एंड वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ डी. दैट इज डी. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डी. हम लोग कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग देखते हैं कि किस एलिमेंट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, उस पर कितना चार्ज है, उस पर चार्ज है डी क्यू. सो के डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. ऐसे ही लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज एलिमेंट कितना दूर है पॉइंट पी से, हमें वो देखना है. तो लेट अस सी इन द डायग्राम कि ये एलिमेंट जो है हमें अगर इस पॉइंट पे देखना है तो ये इस पॉइंट से ये एलिमेंट कितना दूर है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस. Now we say that this point P is r distance away from the axis of the ring. So consider a ring of radius A and a point P on the axis of the ring. And how far is the P point? P point is r distance away from the center of the ring. Axis पर r distance away है P point. और मुझे इस पी पॉइंट पर क्या देखना है, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है.
अभी मुझे किसकी वजह से देखनी है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से देखनी है। अब मुझे डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, राइट, डिस्टेंस स्क्वायर, कौन सा डिस्टेंस, एलिमेंट कितना दूर है पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस चाहिए। सो दिस विल बी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, this will be what, this will be r square plus a square, है ना, this will be r square plus a square का square, okay. So if I will put this distance over here, I will get k dq upon r square plus a square, and square root and square will get cancelled, है ना, एक अंडर रूट है और एक स्क्वायर है, so they will get cancelled, and I will get dE as k dq divided by r square plus a square. Now I have the value of dq. I have the value of dq, right? We'll put this value over here. अब हम इस value को put करते हैं. जब मैं इस value को put करूंगी, so I will get dE is equal to k q upon 2 pi a dl upon r square plus a square. This is what I am getting. ठीक है, ये मिल गया मुझे. अब जो मेरे पास dE का एक्सप्रेशन आया है, हम लोग बोलते हैं this dE has two components. Okay, तो मुझे पता है ये जो dE है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हर वेक्टर क्वांटिटी को मैं क्या कर सकती हूँ, रिजॉल्व कर सकती हूँ इन टू डायरेक्शंस. तो लेट अस सी हाउ वी विल रिजॉल्व दिस. ओके, सो ये जो dq है, ये जो p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस p पॉइंट पे देखनी है, so what will be the direction? The direction will be along this line, right? It will be along this line. Now, if I say that this angle is theta, if this is the angle of elevation of एक element का P जो एक्सिस है रिंग के, वो एंगल थीटा है, ठीक है. सो आई कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये बोल सकते हैं हम लोग. अब अगर ये दोनों एंगल्स थीटा हैं, सो आई कैन रिजॉल्व दिस डीई. ये जो डीई है इसको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ दो पार्ट्स में. वन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग and one is perpendicular to the axis of the ring. Okay, I can resolve this electric field into two components. One is along the axis of the ring and one is perpendicular to the axis of the ring. अब देखेंगे that जो axis के along component है, this is dE cos theta, and जो component perpendicular है, this is dE sin theta. Got it? Now, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो एलिमेंट हमने पहले ड्रॉ करा था, अगर इस एलिमेंट का मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट एलिमेंट देख, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट एलिमेंट इसका क्या होगा, ये होगा. अगर मैं पहले वाले एलिमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट एलिमेंट देखूं, तो दिस इज माय dq एंड dl. अब ये जो dq एंड dl है, ये भी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेंगे, दैट विल बी dE. ठीक है, इट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि सेम चार्ज का एलिमेंट है, सेम ही डिस्टेंस दूर है. तो ये भी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जनरेट करेगा, दैट विल बी dE. दिस विल बी dE. बट क्या है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है. अब ये जो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी है, ये भी तो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने एग्जैक्ट ऑपोजिट एलिमेंट उठाया है. तो अगर ये वाला पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो नीचे वाला पॉइंट भी तो थीटा एंगल बनाएगा पॉइंट पी पर. सो अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा. और आप इस डीई को भी, ये जो डीई है, ये जो हमने नया डीई ड्रॉ करा है, इसको भी आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. वन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस and one is along the direction of axis. जो perpendicular to the axis है, वो होगा dE sin theta,
और जो अलोंग द एक्सिस है दैट विल बी डीई कॉस थीटा। ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट जो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है, कौन सी, ये डीई साइन थीटा और ये डीई साइन थीटा, they are acting in the opposite directions and they have the same magnitude. If they are acting in opposite directions and have the same magnitude, so they will cancel out each other. ठीक है, they will cancel out each other and जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी इन दो एलिमेंट्स की वजह से, दैट विल बी ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। किस डायरेक्शन में होगी, एक्सिस ऑफ द रिंग की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है वो क्या है, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, दे आर कैंसिलिंग आउट। सो नाउ you will say that okay, if this happens then अगर मैं एक ये एलिमेंट ले लूं, ये एलिमेंट ले लूं, तो इसके, जब मैं इसकी वजह से टी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगी और इसी के ऑपोजिट एक और ले लूं, इसी के ऑपोजिट का मैं अगर क्या ले रही हूँ, एलिमेंट ले रही हूँ, तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए भी व्हाट विल हैपन, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए भी जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं दे विल गेट कैंसल्ड आउट। सिमिलरली अगर मैं एक और एलिमेंट देखूं यहाँ पे और इसका नेक्स्ट एलिमेंट देखूं, तो उसके अंदर भी क्या होगा, द ऑपोजिट एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जब मैं उनको रिजॉल्व करूंगी तो उनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल करते जाएंगे और जो अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हैं दे विल स्टार्ट एडिंग अप। ठीक है, so that means how will I write this, I will write that DE has two components, है ना, one is DE sine theta and DE sine theta is along which direction, it is perpendicular to the axis, and I will write that the second component is DE cos theta which is along the axis. Okay, the second component is along the axis, then we will write that perpendicular components of any two diametrically opposite, डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब क्या है, डायामीटर के दो एंड्स, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है तो अगर मैं वहां से ड्रॉ करूं एक डायामीटर, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो उस डायामीटर के दूसरे एंड पर है। ओके, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, हमने यही कहा था ना कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स के, वो इक्वल है एंड दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तभी तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड हेंस दे कैंसिल आउट। ओके, एंड हेंस दे कैंसिल आउट इन पेयर्स। सो अगर एक डायामीटर के एंड का एलिमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है, तो उसका जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है वो उतना ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, सो दे विल गेट कैंसल्ड इन पेयर्स। सारे एलिमेंट्स का जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कंपोनेंट, इट विल गेट कैंसल्ड इन पेयर्स, क्योंकि हर एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट बैठा है, क्योंकि एक रिंग है हमारे पास, राइट। नाउ only the axial components will add up to give the resultant electric field. So what will be the resultant electric field? It will only be because of the axial components, that is along the axis. Okay, जो एक्सिस के अलोंग है सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हेंस the total electric field intensity
ड्यू टू एंटायर रिंग, पूरी एंटायर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं टोटल ई, जिसको मैं ई डिनोट कर रही हूँ, इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट विल बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे हैं और कौन से ऐड हो रहे हैं, डीई कॉस थीटा के एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। Now, let us put the expression of DE over here. जो हमने DE का expression निकाला था, it was KQ by 2 pi A. Then I had DL by R square plus A square. ये था हमारे पास. And we have now a cos theta. ठीक है, I have cos theta. Now I need to write the value of cos theta यहाँ पे. ठीक है, cos theta की value put करेंगे. So what is the value of cos theta? From the here you can see that cos theta is what? अगर मैं इस एंगल को देखूं theta and I'm looking at this triangle, तो cos theta क्या होता है? Base upon hypotenuse. So what is the base of this triangle? It is r, है ना? From here to here, what is the base? Base is r. And what is hypotenuse? Hypotenuse is under root of r square plus a square, right? This is the value of cos theta. So we put the value of cos theta r upon under root of r square plus a square. Now we take out all the constants. सारे के सारे constants को बाहर ले जाएंगे हम. And we have a r and then we have to integrate dl. Now what is the integration of dl for a ring? So जब मैं सारे elements को add कर दूंगी, I am adding the length of all the small elements and that will give me what? That will give me circumference of the ring, है ना? वो मुझे क्या दे देगी? वो मुझे circumference दे देगी ring की. So integration of dl over the entire ring, ठीक है, पूरी रिंग के लिए जब मैं सारे स्मॉल एलिमेंट्स की लेंथ को ऐड कर दूंगी तो वो मुझे क्या दे देगी? टोटल लेंथ ऑफ द रिंग विच इज सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग. सो दिस इज 2 पाई. नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर and I will get this r square plus a square will give me 3 by 2 raised to power 3 by 2, right? ये बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा. And then I have integration of dl which is 2 pi a. This 2 pi a and this 2 pi a will get cancelled. And what will be the expression of electric field? It will be kqr by r square plus a square raised to power 3 by 2. This is the expression for your electric field intensity due to a ring at a point P which is kept at the axis of the ring, and that point P is how much far from the ring? It is r distance away from the ring. Okay, so and अभी यहाँ पे we will not say our answer is complete because we still haven't given the direction. So this electric field is in which direction? It is along the axis away from the ring. What is the direction? The direction is along the axis away from the ring or away from the center of the ring. Okay. So this is the electric field intensity at a point r distance away from the center of the ring kept at the axis of the ring. Okay. So अगर आपके पास question आता है, if you have a question like this, that you have a ring, it has a charge of 5 coulomb and the radius of the ring is 1 meter, and you have to find the electric field intensity at a point P and it is kept on the axis of the ring. And how much distance is it away from the center of the ring? It is 10 meters away from the center of the ring.
Then find the electric field intensity. So how will we find the electric field intensity? We have the formula K Q R by R square plus A square raised to power 3 by 2. And what will be the direction? The direction will be this. This will be the direction of your electric field intensity. So we will put the value of K, we will put the value of Q, we will put the value of R. What is R? R is 10 meter. And then we will have R square plus A square. So R square is 10 square, A square is 1 square, and this raised to power 3 by 2. And when you will solve this, you will write the units. What will be the units? The units will be Newton per Coulomb. What are the units of electric field intensity? It is Newton per Coulomb. And what is the direction? It is along the axis away from the center. Okay. एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बोलती कि चार्ज -5 कूलम है, सब कुछ सेम है बट चार्ज -5 कूलम है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती वो तो सेम आती जो आपने ऊपर निकाली है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या होती? इट विल बी अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रे। और इसके अंदर क्या है डायरेक्शन? अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है कि आप एक रिंग जो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन भी कर ली, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लिया। सो लेट मी राइट दिस इज एन एग्जाम्पल। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लिया। नाउ लेट अस टेक अ स्पेशल केस। ओके, सो व्हाट इज द स्पेशल केस? यू कैन मेक इट अ नोट इन योर नोट्स, कि एक नोट बना सकते हैं आप, वरना आप मेरी तरह एक स्पेशल केस लिख सकते हैं। दैट व्हाट इफ द पॉइंट P is very far from the ray। ठीक है, यानी कि ये मेरी रिंग है, इफ दिस इज माय रिंग जिसका रेडियस ए है, और मुझे इतनी दूर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस केस? दिस केस इज दैट इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी कि आपको जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो रेडियस ऑफ द रिंग से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सो उस केस में आप देखेंगे दैट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है वो निकाली है कुछ ये, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन निकाला है हमने। अगर आपका आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, और मैं लिख सकती हूँ कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इफ r is very very greater than a, so I can write that r square plus a square is equivalent as writing it as r square, है ना, इसे लिख सकते हैं हम। so मैं इसको अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? r square raised to power 3 by। now let us simplify this. Up r square and this will get cancelled and I will have r cube in denominator, this and this, so power 8 से कम हो जाएगी and I will have k q by r square. So the electric field intensity due to a ring, if the point P is very far, it is k q by r square, which is same as, वहां ये एक्सप्रेशन किस चीज से मिलता है? ये एक्सप्रेशन मिलता है जब मैं सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रही थी, है ना। दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज अगर मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है किसी पॉइंट पर, तो मैं क्या करती हूँ? के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखती हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई है? के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गई है।
So charged ring, I can write that my charged ring behaves as a point charge. The charged ring behaves as a point charge when R is very, very greater than A. Okay, so this is the special case that my charged ring will behave as a point charge. अगर मैं कहाँ किस केस में देख रही हूँ, जब मैं बहुत दूर देख रही हूँ रिंग से, ठीक है, अगर मैं रिंग से बहुत दूर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रही हूँ, तो उस केस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है रिंग की, दैट विल बी सेम एज the electric field intensity due to a point charge. मैं बोल सकती हूँ कि ये जो रिंग पे चार्ज है, it is actually behaving as a point charge, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे वो आ जाएगी k3 by r. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गई हो क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आपकी खत्म हो गई है. वी हैव डिस्कस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. देन वी डिड अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फिर हमने क्या करा, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन देखी ड्यू टू अ चार्ज रिंग. सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक माय वीडियो, डू कमेंट आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me in the comment section anytime. Thank you so much for watching this video, and bye bye till now, and I hope I see you all tomorrow, see you all in the next class. Bye bye.